So very good evening all the participants to this new batch of July 2025. Let me share my screen with you. So first of all, we'll discuss how to pass the examination. So there are two ways of studying this bare code. One is to read the code first, then to read the regulations, rules and circulars separately. So that way you will not be able to understand and appreciate each and everything. This is just like having all the chapatis first and then dal and then sabji and then raita. So you will not relish. But if you combine all these things together, so while reading the code, you go to the regulation, you go to the rule and you go to the circular. But the challenge here comes is that there is no direct referencing in the code to the regulations or rules. So they have simply written as may be specified. So as may be specified, wherever written, it leads you to regulations. But the regulation number is not there. So what we have done is, we have linked together the code with the regulations and rules. So simply, just by clicking, I have shared the PPT with you. So in that PPT, most of the linkages are already there. And in case they are not there, I will update them. Like I will show you just one example here. Let me share another PPT with you. I hope now this PPT is visible. So this is the Yes, sir. PPT on bare code. So here, suppose you go to a particular section, like you go to this section, section 4. So section 4, you might be noticing that regulation number 1 and 2 is written here. So what you have to do? You have to press control along with this. Enter. So control plus enter, that will take you to regulation number 1 directly. And now you want to come back. So you can go to last viewed. In slideshow mode, you can go to last view mode. Like from here, like slideshow mode is there. So this is from current slide. So what we will do is, so from here it will take you directly to regulation number 1 and 2. This is regulation number 1 and 2. And now you can go to last viewed. So you will go again to section 4. But if you press it too many times, then you may not be able to go, then you have to go manually. But still, it will help you a lot. I hope you have understood this part. Now, suppose they are saying in section number 8, they are referring to rule number 5. Because they are saying as may be prescribed. So, you go to rule number 5. Rule number 5, you can go like this. Rule number 5. So, it will take you directly to rule number 5. And then you want to come back, you can come back to last view. So, this is the way you have to study the rules and regulations. I have given proper linking. If you read through the book, you will not be able to do this. Because in books, no rule number is written, no regulation number is written. But I have linked it here. Like if you want to go to rule number 9, so you can go directly to rule number 9. This will take you to rule number 9. And then you want to go back, you can go to last view. I hope this point is clear. ये क्लियर है निशा जी? निशा जी, दिस पॉइंट इज क्लियर? रायजादा जी, आप क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है ना? हाँ. एंड दिस पीपीटी आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू. सो आपको क्या करना है? रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में पढ़ना है. अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ है ही नहीं. ना रूल नंबर लिखा है, ना रेगुलेशन नंबर लिखा है. यहां पर हमने क्या किया? सारा लिंकेजेस दे दिया है हर सेक्शन के साथ में. जैसे सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 में रूल नंबर 9, यहां रूल नंबर 9 पे आप जाइए.
ये आपको रूल नंबर 9 पे ले जाएगा सीधा। आप रूल नंबर 9 पढ़ लीजिए इनसे। ठीक है जी। और वापस आना है तो लास्ट व्यूड पर चले जाइए। ठीक है हितेश देसाई जी, क्लियर है बिल्कुल? क्लियर क्लियर सर। है ना? तो जितने भी सेक्शन है सब में दे रखा है। जैसे 12A है, अब 12 सेक्शन इसके साथ रेगुलेशन नंबर 30A है। अब ये रेगुलेशन 30A पर ले गया आपको डायरेक्टली। ठीक है जी। तो जैसे आपने सेक्शन पढ़ा, उसके साथ में आपने रेगुलेशन नंबर पढ़ लिया। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। बुक में रेगुलेशन नंबर लिखा भी नहीं हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है एज में बी स्पेसिफाइड। लेकिन हमने क्या किया है, सारे लिंकेजेस दे दिए हैं रूल्स के साथ, रेगुलेशन के साथ। और आपको वापस आना है तो वही लास्ट व्यूट पे चले जाइए। सर हमें बेयर एक्ट लेने की जरूरत है या उसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसी। कोई जरूरत नहीं है लव्यू बेयर एक्ट लेने की। बेयर एक्ट अगर आप लेंगे, बेयर एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, बट सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग फ्रॉम द बुक। ठीक है। अब अपने अपने देखो हैबिट की बात है। अगर आपको बुक से ही पढ़ना है तो आप क्या करो, बुक के ऊपर ही ये रेगुलेशन नंबर लिख लो जो मैंने दिया हुआ है। पर वो भी रेगुलेशन नंबर से आपको डायरेक्टली तो नहीं ले जाएगा ना बुक से। फिर आपको हम्म। मार्किंग करनी पड़े, या उसके साथ फिर पेज नंबर लिख लो आप बुक का। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट। ठीक है जी। तो हितेश देसाई जी, आप कैसे पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो या ये ऑनलाइन पढ़ना सर पसंद करो? ऑनलाइन टैब टैब में सर। सर ये बेयर एक्ट ऑनलाइन ही पढ़ते हैं सर। है ना? तो हाँ जी। ऑनलाइन पढ़ोगे तो ये तो बेस्ट है देखो। बेस्ट है सर ये। है ना? इसमें हाँ जी। हमने रूल नंबर रेगुलेशन नंबर लिख दिया है। ठीक है जी। सारे सेक्शन में देखो लिखा हुआ, जहां तक आप जाओगे ना ये सब सेक्शंस में लिखा हुआ है। ये सब जैसे एक में कई बहुत सारे हैं तो अलग अलग दे रखे हैं रेगुलेशन नंबर, बहुत सारे जैसे सबमिशन। तो इस तरह से ये रेगुलेशन नंबर सब पे जा सकते हो आप। तो इनको साथ साथ रेगुलेशन नंबर पढ़ते रहिए और इस तरह से करते रहिए। ये मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ये CIRP का, ऐसे लिक्विडेशन का भी है। सब सब लिंकेजेस प्रोवाइडेड है। और जहां नहीं है वो आप मुझे बता देना, मैं और लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें उसमें क्या है, हमने तो सिर्फ लिंक ही करना है उसको। क्योंकि बुक में क्या प्रॉब्लम आती है, बुक में लिखा नहीं हुआ कहीं पर भी है। और जब लिखा नहीं हुआ तो समझ में नहीं आता फिर। अब जैसे यहाँ रेगुलेशन नंबर 15 है, रेगुलेशन नंबर 15 पे आपने क्लिक किया, ये सीधा आपको रेगुलेशन नंबर 15 पे ले गया। और आपने वापस जाना है तो वो लास्ट व्यूड पे जाइए, लास्ट व्यूड आपको वापस वही ले गया। अगर आप बहुत ज्यादा बार क्लिक कर देंगे तो लास्ट व्यूड पर नहीं जाएगा वो। फिर कोई बात नहीं, फिर आप सेक्शन नंबर मैनुअली चले जाइए। थोड़ा सा पेजेस ही तो है ना ऑनलाइन, कोई इशू नहीं है। है ना? ये बात तो क्लियर हो गई, चलिए। आज तो बेसिकली हमें यही डिस्कस करना है कि पढ़ना कैसे है। क्योंकि एक बार पढ़ना समझ में आ जाए तो फिर काम हो जाता है। ठीक है जी। तो आपको ऐसे चपाती, दाल, सब्जी और रायता अलग अलग नहीं खाना, मिला करके खाना है। और मिलाने का रास्ता मैंने आपको यहां दे दिया है। चलिए। ये PPT है। ठीक है। तो क्या है अपना टारगेट? टारगेट जो है, इट इज टू हैव ए बैलेंस्ड परफेक्ट स्कोर टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक है। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर। सो विद नेगेटिव मार्किंग, passing this exam is a challenge. So it's very important to strategize in terms of approach, answering the questions, attempting the questions, and time management. If you do not know an answer, please don't attempt, because negative marking is there, and they set the questions in such a manner that it might be difficult for you to find out the exact answer if you do not know. तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको अगर आता है तो अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता छोड़ दीजिए। क्योंकि चांसेस गलत होने के ज्यादा है अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड? स्टेप्स टू बी फॉलोड में ये है कि यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस एंड इट्स वेटेज प्रॉपरली, एंड यू हैव टू प्लान योर स्टडी अकॉर्डिंगली। सो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम IBC एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। डिसीजंस ऑफ NCLT, NCLT, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट,
and transactional analysis of corporates and individuals and partnership firms. Now, there are 72 case laws. अब ये क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी 72 केस लॉज है, एंड फ्रॉम इन केस लॉज सम ऑफ द केस लॉज आर ऑफ 100 पेजेस, 150 पेजेस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. So a challenge comes and the weightage is 5 marks only. So what we have done is we have given you a case law PPT also. So let me show you that PPT also and how to use that PPT. ये केस लॉज आपको नजर आ रहा है मेरे स्क्रीन पर? केस लॉज है हितेश जी? दिख रही है। दिख रही है ना? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। तो अब आप इसमें ये देखिए, जैसे ये यहां पर गया, ठीक है? तो हमने क्या किया, इसमें लिंकेजेस प्रोवाइड कर दिया आपको. सबसे पहले तो हमने यहां नाम दे दिया. अब जैसे इनोवेटिव है, इनोवेटिव पर आप जब आप कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो आपको इनोवेटिव का केस खुल जाएगा. ठीक है जी? तो इस तरह से हमने सारे इसके लिंकेजेस प्रोवाइड कर रखे हैं. और शुरू में हमने क्या किया, आपको समरी दे दी. समरी के साथ में हमने आपको कीवर्ड्स दे दिए कि भाई दीज आर द कीवर्ड्स विच वर यूज्ड इन दिस केस लॉ. ठीक है? तो आपको एग्जाम डेट पे क्या पढ़ना है? एग्जाम डेट पे तो आपको फर्स्ट जो है 5-6 पेजेस ही आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा. ठीक है? तो कितने पेजेस हो गए आपके? 15 पेजेस. ठीक है? इन 15 पेजेस में हमने आपको समरी दे दी. समरी दे दिया और दे दिया कि भाई इसमें मेन आइटम क्या है. अगर आप इसको सर्च भी करोगे तो आप सर्च भी कर सकते. क्रॉस लिंकेजेस वी हैव प्रोवाइडेड. ठीक है ना? अब आपको यू इफ यू वांट टू गो टू अ पर्टिकुलर केस, जिस पर भी आप जाना चाहो कंट्रोल प्लस क्लिक करो, वो केस लॉ आपका खुल जाएगा. ठीक है जी? तो ये पीपीटी भी मैंने आपसे शेयर की हुई है. तो इस तरह से आपको केस लॉज में भी देखिए ऐसा है, लास्ट मिनट प्रेपरेशन शुड बी अवेलेबल विद यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ. आपको पहले दिन ही पता होना चाहिए कि आपको लास्ट डे को क्या पढ़ना है, क्योंकि लास्ट डे को सिलेबस इज सो वास्ट कि आपको लास्ट डे की प्रेपरेशन में ना दिक्कत आ जाती है. कई बार क्या होगा, आपने पूरा पढ़ लिया, लास्ट दिन समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है. तो आपको जैसे केस लॉज आपने सारे पढ़ लिए. अब ये दीज आर टू मोर देन 200 स्लाइड्स. ठीक है ना? वी हैव ऑलरेडी गिवन यू दी लास्ट बैच रिकॉर्डिंग ऑल्सो. नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा, है ना? अगर रिकॉर्डिंग नहीं शेयर की तो मैं शेयर भी कर दूंगा. उससे क्या है कि आप अपने पेज पर भी उसको यू कैन वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो. जैसे ये सारा नए सिलेबस का ही वीडियोस है जो मैं आपके साथ पिछला बैच शेयर करूंगा, अप्रैल बैच या मई बैच. तो जैसे सपोज देर आर 200 मोर देन 200 स्लाइड्स इन दिस केस लॉस, है ना? तो वो हमने क्या है 4 लेक्चर्स में उसको कवर किया है. आप अपने हिसाब से उसको सुनते रहिए. ठीक है? और जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है उसके लिए भी हमने आपको ये दे रखा है कि भाई फर्स्ट 15-16 स्लाइड्स अगर आप कवर कर लेंगे तो लास्ट डे में आप इतना तो नहीं कर पाएंगे ना. तो क्योंकि 5 मार्क्स की कवरेज है तो आप हो सकता है यू मे बी एबल टू डिवोट 2-3 आवर्स फॉर दिस. भाई लास्ट डे में कितना पढ़ लोगे आप? 10 घंटे पढ़ लोगे, 12 घंटे पढ़ लोगे, और क्या? तो 10-12 घंटे में आप 1-1.5 घंटे में आपको केस लॉ रिवाइज करने हैं. अब 1-1.5 घंटे में तो आप थोड़ा बहुत ही रिवाइज कर सकते हो. तो हमने क्या किया, आपको समरी दे दी, कीवर्ड्स दे दिए, यू कैन सर्च ऑन दोज वर्ड्स. और आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहां से पढ़ लीजिए. और भी डिटेल में पढ़ना है तो देन यू कैन गो थ्रू द केस लॉज ऑल्सो. बट केस लॉज तो दे विल बी अराउंड 3,000 पेजेस अगर आप सारे केस लॉज पढ़ेंगे. तो वो आपका इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ भी सकते हैं इफ यू हैव द टाइम. देखो टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ ईच एंड एवरीवन इज डिफरेंट, है ना? कोई आदमी हो सकता है जिसके पास पूरा दिन टाइम हो, कोई हो सकता है जिसके पास 2 ही घंटे हो. तो आप अपने हिसाब से उस चीज को कर सकते हैं. ठीक है जी? चलिए, तो हम यहां पर थे. ठीक है जी? तो यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस एंड यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद द कोड रूल्स एंड रेगुलेशंस.
ठीक है, एंड डिसीजंस ऑफ एनसीएलटी, एनसीएलटी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड ट्रांजैक्शन एनालिसिस, इट विल फर्दर फैसिलिटेट टू हैव ए better understanding. While reading the transactional analysis, remember the sections of the code and the applicable rules and regulations related to it in a proper manner. Now, another question is whether you are expected to remember the sections. The answer is no. ठीक है, देखो सेक्शंस तो किसी को याद हो भी नहीं सकते, ना ही सेक्शंस याद हो सकते, ना रेगुलेशन नंबर याद हो सकता, एंड यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर देम ऑल्सो. बट बाय द टाइम यू रीड इट 3-4 times ना, कुछ सेक्शन तो अपने आप ही याद हो जाते हैं. लेकिन what you are required to remember is the timelines. Timelines आपको याद करनी पड़ेंगी. Form numbers also they may ask sometimes, not many, but मेजर तो वैसे भी याद हो जाएंगे आपको. उसके अलावा जो पेनल्टी प्रोविजंस हैं वो आपको याद करने हैं. सो सम ए लिटिल बिट ऑफ क्रैमिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. थोड़ा बहुत तो क्रैमिंग करना पड़ेगा. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल गिव यू द पेनल्टी चार्ट्स. वी विल गिव यू चार्ट्स ऑल्सो so that you can remember them easily. Allied laws is another area. So allied laws covering 12 acts. They require thorough working knowledge. ठीक है. Now regarding allied laws also, I have shared one PPT with you. Let me share that PPT. Let me show you that. So what I have done is, this is the PPT on case studies based on business laws and allied laws. So this PPT at least you should go through, है ना. तो ये भी हमने क्या किया, उसमें केस स्टडीज बना रखी है. सो दिस विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग द सेक्शंस आल्सो एंड द रिलेटेड क्वेश्चंस आल्सो. नाउ यू माइट आस्क अनदर क्वेश्चन कि देखिए भाई ऐसा है कि वहां तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो हमारे को क्या ऑनलाइन भी कुछ अवेलेबल है? द आंसर इज यस. सो आई हैव गिवन यू ऑनलाइन टेस्ट आल्सो which contain more than 3000 questions. तो ये जो है ये ऑनलाइन आपका टेस्ट है. मैं आपको दिखा देता हूं. सो दिस इज द ऑल टेस्ट मार्कर लिंक. आई होप नाउ इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. ये विजिबल है? इज इट विजिबल? यस सर. हाँ. तो आपको क्या करना है, आप जिस पर भी जाएंगे, जैसे अलाइड लॉज का आपने ये करना है, ये सारे लिंक है इसमें. ठीक है, आपने कंट्रोल+ क्लिक किया तो ये आपका टेस्ट खुल जाएगा. ये खुल गया, नजर आ रहा है आपको क्लास मार्कर? हाँ जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है नहीं? क्लास मार्कर अलाइड लॉस टेस्ट. तो आपको ईमेल आईडी अपना लिखना है. ठीक है, मान लीजिए मैं यहां अपना ईमेल आईडी लिख देता हूं. आपको अपना लिखना है ईमेल आईडी. ठीक है, आपने ईमेल आईडी के बाद स्टार्ट किया. अभी आपसे क्या पूछेगा? पासवर्ड. पासवर्ड आपको अपना बनाना है. जीमेल आपको अपना, जो जीमेल या जो भी आपका मेल आईडी है उसका पासवर्ड नहीं लिखना यहां पर. यह पासवर्ड आपको अपना बना लेना है, कोई भी. ठीक है, और उसी को रीटाइप कर देना है. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये स्टार्ट आप, ये टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर ये आपका नाम पूछेगा, आप नाम भर दीजिए, और ईमेल आईडी पूछेगा और स्टार्ट. ठीक है, तो इसमें ये आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा. ये नजर आ रहा होगा आपको? आ रहा है नजर राजा जी? हाँ आ रहा है सर. है ना. तो ये स्टार्ट हो जाएगा आपका. तो अगर भी ये स्टार्ट हुआ, अब आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. ठीक है, जब आपका टेस्ट फिनिश हो जाएगा तो आपने लास्ट में क्या करना है, सेव एंड फिनिश लेटर ऐसे कर दीजिए. कोई भी क्वेश्चन करके आप सेव एंड फिनिश लेटर. सेव एंड फिनिश लेटर में क्या होगा, जब आप दोबारा शुरू करेंगे तो ये वाला आपका यहीं से शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे आपके पास, अब हो सकता है जैसे हितेश देसाई जी, आपने मान लीजिए पहले से एग्जाम दिया हुआ है. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इनको अटेम्प्ट करते रहिए जब आपको टाइम मिले. टोटल मिलाकर के 90 टेस्ट हैं इसमें. ठीक है,
तो बहुत सारे टेस्ट हैं, कोई 30 नंबर का, कोई 50 नंबर का, कोई 65 नंबर का। तो ये सारे टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये सारे ऑनलाइन टेस्ट हैं। और इसमें अभी हमने लिमिट हटा दी है कि भाई यू कैन अटेम्प्ट देम एनी नंबर ऑफ टाइम्स। उससे क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास ना रॉन्ग आंसर भी आता है, तो आप मार्क कर सकते हो भाई मेरे कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो जब रॉन्ग 2-4 बारी अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको वैसे भी याद होने शुरू हो जाएंगे कि भाई इसका ये आंसर है ना। तो इस तरह से अगर इसमें भी कोई गलती हो, कोई एक आध गलती भी हो सकता है, कई बार होता है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता दीजिएगा, है ना, ग्रुप में लिख दीजिएगा, ये मुझे बता दीजिएगा, तो उसको हम करेक्ट करा देंगे। हो जाता है कई बार। तो क्योंकि ये हमारे हमने पेड सॉफ्टवेयर ले रखा है, हर महीने हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है इसको। बट ये इसको हमने जिंदा रखा हुआ है इसीलिए भाई मेंबर्स की सुविधा के लिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट से ना बहुत अच्छा रहता है। और आप अपनी मर्जी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं भाई, जब भी आपके पास टाइम हो, रात में, सुबह, संडे को, हॉलीडे को, कभी भी आप अटेम्प्ट करिए। और बहुत सारे तो सिंपल हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बिना पढ़े भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई आपका परसेंट लेवल ऑफ प्रेपरेशन कहाँ तक है कि नहीं। आप अपने हिसाब से लेवल ऑफ प्रेपरेशन जज करके उसको करते रहिए। ये भी मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप में, है ना, कर दिया ना, ये सब ऑलरेडी ग्रुप में शेयर है। चलिए। अलाइड लॉज भी हो गए, ठीक है ना। And now, once you are done with the understanding the IBC code and rules and regulations, then summarize all sections in a nutshell, like CIRP and then individuals and partnership firms. You can prepare a short summary for last time revision. So it is recommended to take mock test online as possible. ठीक है। तो मॉक टेस्ट का भी मैंने आपको बता दिया। अब रह गया शॉर्ट समरी। अब शॉर्ट समरी आपकी कहां पर है, शॉर्ट समरी भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारी है शॉर्ट समरी। ठीक है। ये भी आपके पास अवेलेबल है, मैंने पहले से ही शेयर किया हुआ। ठीक है। इसमें बहुत सारी शीट्स हैं, देखो आपको नीचे नजर आ रही होंगी, है ना। तो इसमें क्या है, फॉर्म नंबर है, प्रोसेस वाइज। ठीक है। अलग अलग प्रोसेस का ये सारे ड्यूटीज क्या है, डेट्स कौन कौन सी हैं, पीपीआईआरपी में क्या है, ये पेनल्टी, ये सारा बैंक्रप्सी प्रोसेस, ऐसे जितने भी प्रोसेस है, वाटरफॉल मैकेनिज्म क्या है ना, ये परसेंटेज, कंप्लेंट वगैरह के बारे में, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमने मतलब पूरा आईबीसी एक किस्म से इसको यहां पर रिवाइज कर दिया चार्ट्स के थ्रू। क्योंकि आपको एग्जाम से पहले दिन जो है ये चार्ट ही अगर आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। और ये सारे एडिटेबल हैं, तो जब जब भी आप जो भी आप उसमें चेंज करना चाहो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। देखो मटेरियल आपको जितना मर्जी मिल जाए, लेकिन होता क्या है, जब तक आप उसको अडॉप्ट नहीं कर लेते ना, तब तक बात नहीं बनती। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, या इसी के ऊपर कुछ आप अपना अपने हिसाब से लिख दीजिए, जैसा भी आपको करना हो। ये नोट्स भी किसी स्टूडेंट ने ही बना रखे हैं, ये जो आईबीसी का चार्ट है ये स्टूडेंट्स ने ही बना रखा है। तो अब लेकिन अब जो इतनी मेहनत करते हैं वो पास होने ही होने हैं फिर। तो मेन चीज ये है। इसी तरह से आप भी अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं इन चीजों को। और भी बहुत सारे चार्ट्स मेरे पास हैं, पिक्चर्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना पिक्चर्स में ही ज्यादा सोचता है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी, और ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर थे। ठीक है जी। अब ये 60 तो नहीं है, अब खैर 72 हो गए हैं, ये कह रहा है 60 है। तो ये दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ। ये पुराना बना हुआ होगा इसमें, कहाँ गया ये
ये हमारे 72 केस लॉस हो गए, ठीक है ना। चलिए उसके आगे, तो रिवीजन, आप लास्ट मिनट प्रेपरेशन में आपको क्या करना है? देखो मैंने आपको ऑनलाइन टेस्ट बता दिए, मैंने आपको चार्ट्स बता दिया, ठीक है, और केस लॉज की भी मैंने आपको समरी भी दिखा दी, है ना। केस लॉ में आप समरी पढ़ोगे, अलाइड लॉज की एक पीपीटी मैंने तैयार की हुई है, वो मैंने आपसे शेयर कर दी लास्ट मिनट के लिए, ठीक है। बाकी तो ऐसा है, कम से कम 30 to 40 वीडियो लेक्चर्स हैं ऑन अलाइड लॉज ओनली, ठीक है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें क्या है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही हमने 1.5-2 घंटे में समझा रखा है पूरा, है कि नहीं। लेकिन आप लास्ट मोमेंट पे उतना तो नहीं कर पाओगे ना, तो लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है, वो पीपीटी मैंने आपसे पहले ही शेयर कर दी है। समटाइम्स दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू, आपको क्या करना है, आपको अपना कूल मेंटेन करना है। देखो जो आपने पढ़ाई करनी है 1-2 दिन पहले ही कर लो, लास्ट डे तो आप मुश्किल से 8 या 10 घंटे पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा पढ़ाई मत करो। कई लोग क्या होता है रात को सोते ही नहीं, इतना भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अपनी कूलली प्रिपेयर होके जाओ। और एग्जाम में कई बार क्या होता है कि सुपरफ्लुअस इंफॉर्मेशन भी आपको दे देता है। सपोज दे आर गिविंग यू अ केस स्टडी, सो दे विल एक्सप्लेन द फैक्ट्स इन डिटेल, लेकिन आपको क्या है, यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। आप क्वेश्चंस को पहले देखेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप बिना बिना केस स्टडी को पढ़े ही आंसर कर दो आप, ठीक है ना। और जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हो, तो फिर जब आप केस स्टडी पढ़ते हो तो क्या होता है कि आपका माइंड जो है केस स्टडी पढ़ते टाइम भी क्वेश्चंस की तरफ घूमता रहता है। तो यू हैव टू रीड दी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन दी केस स्टडी। तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट, देखो 30 क्वेश्चंस विल बी देयर विच विल बी ऑफ 1 मार्क, एंड 35 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 marks each. So our stress should be that out of IBC only, IBC is of 72 marks basically. So out of 72 marks, we should be able to get at least, आप समझिए, more than 50। क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखो जितना भी आप करोगे गलत होगा ही, थोड़ा बहुत हो सकता है आप छोड़ भी दो, तो कम से कम 50+ तो आपको कोड में लेने हैं। उसके बाद में फिर बाकी अलाइड लॉस पे 10 नंबर लेने हैं। आपको छोड़ना भी कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम अलाइड लॉ छोड़ जाएं क्या, खाली कोड पर ही जोड़ देते हैं, नहीं, वो दैट इज नॉट ऑल्सो द करेक्ट अप्रोच। सो यू हैव टू रीड द अलाइड लॉज ऑल्सो, एंड यू हैव टू रीड द आईबीसी ऑल्सो, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू दिस। उसके बाद में हमारा सिलेबस है, लेट अस हैव ए क्विक लुक एट द सिलेबस ऑल्सो। हालांकि हो सकता है आपने देखा भी हो, तो लेकिन एक बार सिलेबस को भी देख लेते हैं। सिलेबस में क्या है, 4 मार्क्स का आपका कोड है, और 6 मार्क्स का आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है जी। उसके बाद में ये आपका, ये 4 मार्क्स में आपका कंपनीज एक्ट आ गया। इन कंपनीज एक्ट देर आर सर्टेन चैप्टर्स ओनली, ये चैप्टर्स हैं कंपनीज एक्ट 3, 5, 6, 7, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ अब यहां पर भी एक चैलेंज आता है। वो चैलेंज क्या आता है, यू मे नॉट बी हैविंग एन अपडेटेड कॉपी ऑफ द कोड या एक्ट विद यू, ठीक है। भाई कंपनीज एक्ट आपके पास पुराना पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए हमारी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट शेयर करता हूं आपसे। और उस वेबसाइट पर क्या है कि आपको लेटेस्ट कॉपी मिल जाएगी ऑनलाइन। और मेरी वेबसाइट बहुत सिंपल है, CARKGupta.com, ठीक है, मैं शेयर करता हूं। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है जी, क्लियर है, नजर आ रही होगी, आ रही है नजर हितेश देसाई जी? जी सर। आपको नॉलेज बैंक में जाना है, ठीक है। आपको कंपनी चेक पढ़ना है, नॉलेज बैंक में जाइए। नॉलेज बैंक में एक्ट, अगर एक्ट देखना है तो एक्ट में चले जाइए, रूल्स में जाना है तो रूल्स में, फॉर्म्स में जाना है तो फॉर्म्स में। आपने एक्ट पर चले गए, ठीक है। अब एक्ट में आप यहां चले गए, आपको इनकम टैक्स देखना है या कॉर्पोरेट, कंपनीज एक्ट आपको कॉर्पोरेट लॉज में मिलेगा, तो कॉर्पोरेट लॉज में चले जाइए। कॉर्पोरेट लॉज में कंपनीज एक्ट, अब कंपनीज एक्ट दो है आपके पास, कंपनीज एक्ट 2013 है और कंपनीज एक्ट 56 है। तो कंपैरिजन 2013 में जाइए, आपको जो चैप्टर पढ़ना है यहां से चैप्टर पढ़ लीजिए।
ठीक है जी, नजर आ रहा है ना आपको? हाँ जी हितेश जी, हाँ जी सर। जैसे चैप्टर 3 अभी नजर आ रहा है ना, जो मैंने यहां पर क्लिक कर रहा हूं। यस सर। हाँ, तो अब चैप्टर 3 पर गए, मान लीजिए आपने यहां गए, ठीक है, तो ये इसमें सेक्शन खुल जाएंगे। अब जब सेक्शन खुलेंगे तो सेक्शंस में कई बार क्या लिखा होता है, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, तो वो रूल पर ले जाएगा आपको, तो वो रूल भी यहां से खुल जाता सीधा। ठीक है, और ये क्या है, ये आपको लेटेस्ट कॉपी मिल जाएगी इसके अंदर। और बैक जा करके आप बैक बैक चले जाइए, तो दोबारा मान लीजिए तो आपने कोई दूसरा एक्ट देखना है, जैसे कंपनी एक्ट था ये। अब मान लीजिए आपको इनकम टैक्स वगैरह की तो जरूरत नहीं है ना। जैसे आपको अदर स्टैट्यूट्स कुछ देखने हैं, अदर स्टैट्यूट्स भी है ना हमारे कोर्स में, तो अदर स्टैट्यूट्स में आपके पास, मान लो आपको पीएफ एक्ट देखना है, जैसे पीएफ एक्ट हमारे सिलेबस में, तो पीएफ एक्ट यहां से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फेमा है, फेमा हमारे को मिल जाएगा। रेरा है, रेरा मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी एक्ट्स हैं, अब रह गए बाकी एक्ट्स, वो कहां पर मिलेंगे, वो भी हमारी वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट में आप आईबीसी में चले जाओ, आईबीसी 2016। ठीक है, आईबीसी 2016 पे गए आप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से आपको चाहिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे क्लिक करो, आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी एक्ट्स हैं सारे के सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई ना मिले तो हमें बता देना, हम डालवा देंगे उसको। ये स्क्रीन है, तो ये CA RK Gupta.com। ठीक है, तो आईबीसी में गए, आईबीसी में आपको ये वाला भी मिल जाएगा, जो ये बेयर कोड एंड रेगुलेशन है, ये भी पर यहाँ पर ये पीडीएफ है, मैंने आपको पीपीटी शेयर की है। पीपीटी एडिटेबल है, यहाँ एडिट नहीं हो पाएगा, तो मैंने ग्रुप में वहां पर, यहाँ तो पीपीटी डाल नहीं सकते ना, यहाँ तो पीडीएफ ही डालनी पड़ती है। तो यहाँ जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है ना, तो बहुत सारे एलाइड लॉज हैं, बहुत सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, जो जो भी आपके सिलेबस में है ना, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो अलाइड लॉज जो आपको पढ़ना है यहां से पढ़ सकते हो, अगर आपको समरी पढ़नी है तो समरी मैंने आपको दे दी है, और भी बहुत सारी और भी पीपीटीज हैं समरी इस पे, अलाइड लॉज पे ही, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखना है, या आपको बेयर एक्ट से पढ़ना है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ना है, तो उस सेक्शन के लिए आप जगह जगह ना जा करके आपको एक ही जगह पर सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आज की डेट में 6 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं मेरी वेबसाइट पे। वो इसीलिए आता है कि हमने इसको बना इस तरह से रखा है कि इसके लिए नहीं, और भी चीजों के लिए बहुत फायदेमंद है कि नहीं। आपको कोई ट्रस्ट बनाना है, कोई सोसाइटी बनानी है, बहुत सारा मटेरियल इस हमारी वेबसाइट पे दे रखा है, और हमने उसको बिल्कुल प्रैक्टिस फॉर्मेट में दे रखा है, सीधा ड्राफ्ट दे रखा है, कि अगर ड्राफ्ट डीड है तो ड्राफ्ट डीड आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो काफी सारा मटेरियल आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा भी, मतलब ये तो है ही है, आईबीसी तो है ही है, आईबीसी के अलावा भी अगर आपको चाहिए हो तो भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। जैसे नॉलेज शेयरिंग में गए आप, नॉलेज शेयरिंग में गए, मान लो आप एनजीओ में जाना चाहो, ठीक है, तो एनजीओ में गए, तो ये सैंपल ट्रस्ट डीड आपको चाहिए, तो ये सैंपल ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट मिल जाएगा, ये खुल गई, है ना, इसी में आप अपना चेंज करो और ट्रस्ट डीड बन गई आपकी। तो काफी मटेरियल इस पे, अगर आप जैसे देखोगे तो बहुत सारा मटेरियल आपको, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, और भी बहुत सारे वैल्यूएशन के लिए भी है यहाँ पर, वैल्यूएशन के लिए अलग से हमने बना रखा है, वैल्यूएशन का बीजीएम है, आईबीसी का है, बहुत सारा मटेरियल इसमें है। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पर थे हम लोग। ठीक है जी, तो ये बिजनेस लॉज हो गए आपके, जो एक्ट आपको चाहिए, और इसमें जो आपको कंपनीज एक्ट में क्या है, नॉट ऑल दी ऑल द सेक्शंस या ऑल द चैप्टर्स, कुछ स्पेसिफाइड चैप्टर्स हैं
वही आपको पढ़ने हैं। ठीक, ये आपका आगे जनरल लॉज। जनरल लॉज में बहुत सारे लॉज हैं। मीडिएशन एक्ट है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारे हैं। ये ज्यादातर के ऊपर हमने एमसीक्यू भी आपको दे रखे हैं। ठीक, उसके बाद में फाइनेंस एंड अकाउंट्स है 2 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 2 मार्क्स, केस लॉज आपके 5 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद में ये केस स्टडीज है, ये असली है। केस स्टडीज आपकी 70 मार्क्स की है। और केस स्टडीज के लिए जो मटेरियल है, केस स्टडीज पे भी बहुत सारा मटेरियल है जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो आईबीबीआई की वेबसाइट पे जैसे सजेस्टेड उन्होंने दे रखा है, वो बहुत 1 या 2 क्वेश्चन ही है, 1 या 2 क्वेश्चन ही है, उस पर केस स्टडीज ज्यादा नहीं है। लेकिन हम आपको बहुत सारी केस स्टडीज देंगे। ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी हैं, और बहुत सारी केस स्टडीज भी हमने बना रखी है प्रोसेस वाइज। ठीक है, मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूं। अब जैसे स्क्रीन में आप जैसे शेयर करता हूं, तो स्क्रीन में आपको ये फोल्डर नजर आ रहा होगा, है ना। इस फोल्डर में क्या है, जैसे जो पहली बात तो अमेंडमेंट, जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो पिछले वाला सिलेबस था और जो अब वाला सिलेबस है उसमें चेंज है कुछ, है ना। जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई, वो भी आपके अमेंडमेंट भी अलग से हमने दे रखी है। और फिर जैसे बीजीएम ऑन केस स्टडीज, सीआईआरपी, सीआईआरपी की केस स्टडीज ऑन अलाइड लॉज, केस स्टडीज प्रोफेशनल एथिक्स, है ना। तो अलग अलग कंपाइलेशन ऑफ केस स्टडी, लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, अलग अलग से हमने बहुत सारी केस स्टडीज बना रखी हैं। ठीक है, जो आपको टाइम टू टाइम हम लोग शेयर करते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये केस स्टडीज हो गई। तो केस स्टडीज में भी आपको बहुत मटेरियल मिलने वाला है। अभी ये है कि एग्जाम के बारे में पता नहीं, आपको पता है, मेरे ख्याल तो पता ही होगा ज्यादातर को। लेकिन यहाँ पर लिंक भी इन्होंने दे रखा है कि भाई यू कैन अप्लाई ऑन दिस लिंक। अब बात, कई लोग ये कहते हैं जी अभी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है या बाद में। देखो ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, है ना। पहले आप अपनी तैयारी कर लीजिए, उसके बाद में एग्जाम यहाँ इस पर रजिस्टर कर लीजिए, ये लिंक दिया हुआ है। और फीस है इसमें 5,000 प्लस जीएसटी, 5,900। जब भी आप अपियर होना चाहो, हर बार के लिए अलग से फीस है। ठीक है, ड्यूरेशन 2 मंथ्स का है। रॉन्ग आंसर में 0.25% नेगेटिव मार्किंग है, 60% परसेंटेज मार्क्स है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके पास लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस है। जो केसेस हैं आपके, ये 41 सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं। ठीक है, ये सबका मैंने मटेरियल आपको ऑलरेडी दे दिया है। 12 आपके हाई कोर्ट के केसेस हैं। एनसीएलटी के आपके 13 केसेस हैं। और 6 केसेस आपके हैं एनसीएलटी के। तो ये हो गए आपके 72 केस लॉस। ठीक है, ये 72 केस लॉस का भी मटेरियल मैंने आपको दे दिया है। ये एक एफएक्यू है जो कि आपकी साइट पर दे रखा है, आईबीबीआई ने अपनी साइट पर दे रखा है, ये भी मैंने यहाँ पर शेयर आपसे कर दिया है। इसको भी एक बार देख लेते हैं कि कोई खास इसमें बात है, तो उसके बाद में फिर हम शुरू करते हैं। तो पहले कहता है कि भाई क्या, वेदर इट इज मैंडेटेड अंडर एनी लॉ। तो दिस इज मैंडेटेड अंडर रेगुलेशन 5 ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द मैंडेटरी कंडीशंस इफ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, देन यू टू पास दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या कहता है, आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव द रेलेवेंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, सो दिस इज द link where you will get the question and answer. So how to take this examination? You have to register, ये रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया। ठीक है, और आप अपना ये डिटेल्स दे करके जो है एक सिंगल यूजर आईडी आपको बनाना।
उसके बाद देन यू कैन टेक द एग्जामिनेशन। ठीक है। ये अगर आप इसको देखेंगे तो सारा आपके पास यहाँ अपीयर होगा। तो यू कैन टेक द एग्जामिनेशन, यू टू कैरी अ प्रिंट आउट ऑफ द, ये सब आप यू कैन गो थ्रू दिस। कहाँ कहाँ होते हैं? तो स्लॉट अवेलेबिलिटी, सेंटर्स आर अवेलेबल, सेंटर डिटेल्स आर देयर। ठीक है। तो व्हाट इज द फीस? 5,900। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन अपियर? यू कैन अपियर एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल यू क्लियर द एग्जामिनेशन। देयर इज अ कूलिंग पीरियड ऑफ 21 days बिटवीन ईच कंजिक्यूटिव अटेम्प्ट्स ऑफ सच कैंडिडेट। ठीक है। तो 21 days का दो एग्जाम के बीच में आपका गैप है। अब आप रीशेड्यूल करना चाहते हो, आपने स्लॉट ले लिया, रीशेड्यूल करना चाहते हो, क्या कर सकते हो? अब वो कहता है कि रीशेड्यूलिंग इज नॉट परमिटेड। ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वो करते रहते हैं, उनको भी लिए भी बड़ी दिक्कत है। वो कहता है कि रीशेड्यूलिंग इज नॉट परमिटेड अनलेस देयर इज ए बोनाफाइड रीजन। तो आपको टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को इस यहाँ पर मेल लिखनी पड़ती है। वो कहता है कि 15 दिन पहले आप एग्जाम से लिखो, ये नहीं एग्जाम से 1-2 दिन पहले। Therefore, the candidates are advised to carefully plan and schedule their examination. ये चीजें बाद में कई बार ध्यान में नहीं आती, तो पहले से इनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो व्हाट इज द एप्लीकेबल सिलेबस? सिलेबस यहां पर दे रखा है। क्या कोई स्टडी मटेरियल देता है? तो आईबीबीआई डज नॉट प्रोवाइड रिकमेंड एनी स्टडी मटेरियल और वर्क बुक। यू मे यूज द बुक्स और अदर रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट। सम स्टडी मटेरियल दैट द कैंडिडेट्स में फाइल इज यूज्ड एट दिस। ठीक है। तो वो स्टडी मटेरियल आप देख सकते हो। कैन आई रेफर बुक्स और अदर मटेरियल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? नो, यू कैन नॉट रेफर। ठीक है। इट इज नॉट एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। फॉर्मेट क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। टाइम पीरियड 22 आवर्स है। मैक्सिमम स्कोर 100 है और 60 अबाउ इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल। नेगेटिव मार्किंग है 0.25%। स्ट्रक्चर क्या है? टोटल 65, 31 मार्क्स और 35 2 मार्क्स। हाउ कैन आई गेट द आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन बिफोर द एग्जाम? तो सैंपल पेपर आपका अवेलेबल है। I got less questions than mentioned in the examination. Kindly clarify. ठीक है। वो ये कहता है कि एज पर स्ट्रक्चर आपके पास 65 क्वेश्चंस। ठीक है। आउट ऑफ विच 35 आर बेस्ड ऑन 6 ट्रांजेक्शन स्टडीज विच अपेयर एज 6 क्वेश्चन ग्रुप से, वहां ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह से। ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में आपका वो रैंडम बेसिस पे ड्रॉ करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पीछे बैठा है, जरूरी नहीं कि उसका पेपर आपसे सेम होगा, उसका पेपर अलग होगा, आपका पेपर अलग होगा। ऐसा नहीं कि उसने जो पेपर है उसका वो सेम है, सेम कुछ नहीं है। उसका पेपर और आपका पेपर सेम नहीं है दोनों का। हाउ एंड व्हेन आई विल नो द, तो इमीडिएटली आप जो है टेम्पररी मार्कशीट वहां पर डिस्प्ले हो जाती है। कैन आई गेट ए रिफंड? तो फीस इज नॉन नॉन रिफंडेबल। आपने एग्जाम के लिए अप्लाई किया, आप उस दिन एग्जाम में नहीं गए किसी वजह से, तो फीस नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। तो रीशेड्यूल कर सकते हो। तो रीशेड्यूल के लिए उन्होंने बोल ही दिया कि भाई नॉर्मली दे विल नॉट अलाउ, बहुत इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, और 15 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। व्हेन आई विल रिसीव द पास सर्टिफिकेट? तो आपको विद इन 30 days ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है। माई पास सर्टिफिकेट हैज इनकरेक्ट डिटेल्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो नॉर्मली चेंज नहीं करते अनलेस देयर इज ए बोनाफाइड रीजन। ठीक है। उसके लिए आपको एफिडेविट वगैरह देना पड़ेगा। आई हैव नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन, कैन आई गेट माई आंसर शीट टू एवेल्युएट माई आंसर? तो आंसर तो वो डिस्प्ले करते ही नहीं है। ठीक है ना। ना वो क्वेश्चन आपको देते, दे विल अलाउ यू 1 A4 साइज शीट, और वो A4 साइज शीट भी आपसे वापस ले लेते हैं एग्जाम के बाद में। ठीक है। कैन आई रिक्वेस्ट फॉर रीवैल्यूएशन? तो रीवैल्यूएशन इज, नो रिवैल्यूएशन इज अलाउड। ठीक है। कई बार हो जाता लॉग इन नहीं हो पाता, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो भी चीजें वहीं पर ही आपको देखनी पड़ती है।
ठीक है, तो आपका प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस इन्होंने चार्ट में दे दिया। क्या कहा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू एनरोल, देन यू रिसीव ए पास सर्टिफिकेट, देन यू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू रजिस्टर एज आईपी, registration as IP, undergo mandatory 50 hours pre-registration educational course, and then seek primary membership with an IPA। तो ये प्रोसेस आपका पूरा है। ठीक है, ये मॉडल क्वेश्चन है, ये मॉडल क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये बाद में करेंगे जब हम अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा। नाउ अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरा इसका, ये आईबीसी का। तो आईबीसी एज सच is contained in 5 parts. 5 parts हैं। Part 1 is general, and the definitions which are given in part 1 they apply to the whole of the code। ठीक है, और जो definitions 2, 3, 4 या 5 में दे रखी हैं, वो those definitions they apply to that part only। So there are some definitions which are given in first part, section 3। So these definitions they apply to the entire code, and the definitions which are given in part 2 and part 3 they apply to those respective parts only। ठीक है, besides that there are 12 schedules। ठीक है, some of the parts they have got chapters but some are without। जैसे फर्स्ट और 5 है उसमें कोई चैप्टर नहीं है, बट इन 2, 3 and 4 there are chapters also। एक इसमें खास बात है कि whenever section A, some capital A, capital B, capital C is written, so that means that section or that subsection was added afterwards। जैसे सेक्शन 32 ओरिजिनली था, बट सेक्शन 32A नहीं था, 32A बाद में इंसर्ट हुआ, तो वो 32A लिखा गया उसको। ठीक है, नाउ द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क था हमारा, इट वॉज फाउंड इनएडिक्वेट, इनइफेक्टिव एंड रिजल्टेड इन, भाई सबसे पहले क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड में, भाई आईबीसी आया क्यों? आईबीसी से पहले भी तो लॉस थे, है ना। ये आया कि जो पुराना सिस्टम था वो क्या, वो इट वाज कंसिडर्ड इनएडिक्वेट, इनइफेक्टिव एंड रिजल्टेड इन अनड्यू डिलेस। तो वेरियस कमिटीज, कमीशंस वर देयर। तो इसके लिए बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टीके विश्वनाथन, तो विच रीरोट द होल कोड। और उसमें क्या लिखा, उसमें लिखा कि भाई जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईबीसी इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner। ठीक है, तो यहां किसका रीऑर्गेनाइजेशन या इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हो रहा है? कॉर्पोरेट्स का भी और नॉन कॉर्पोरेट्स का भी, चाहे पार्टनरशिप फर्म्स हो, इंडिविजुअल्स हो, टाइम बाउंड मैनर फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द एसेट्स। मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो द इंटेंट टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, availability of credit, and balance the interest of all stakeholders, including alteration in the priority of payment of government dues, and to establish an IBBI and matters connected therewith or incidental thereto। ठीक है, तो ये पर्पस, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। विश्वनाथन कमेटी वॉज फॉर्म्ड, और विश्वनाथन में क्या कहा? विश्वनाथन ने ये कहा कि भाई व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी बिजनेस, ठीक है, तो कुछ बिजनेसेस तो फेल होंगे ही होंगे, तो फेलियर ऑफ सम बिजनेस इज इंटीग्रल। लेकिन जब बिजनेस फेल हो जाए तो उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट ये रहेगा कि भाई या तो उसको रिवाइव कर लो, यू ब्रिंग न्यू मैनेजमेंट टीम, या अगर नहीं हो सकता तो फिर आप स्पीडी लिक्विडेशन करो उसका। ठीक है ना, तो या तो आप उसको रीऑर्गेनाइजेशन कर लो बाय ब्रिंगिंग इन न्यू एंटरप्रेन्योर, और यू रैपिडली लिक्विडेट दैट बिजनेस। दीज शुड बी द 2 आउटकम्स। डिले नहीं होना चाहिए, है ना, ना तो रेजोल्यूशन में डिले होना चाहिए ना लिक्विडेशन में, तो टाइम बाउंड मैनर है यहां पर। ठीक है, और ये आपको हर केस में करना है। ये जो है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन आपको दोनों केसेस में करना है। ये नहीं कि सीधा आप लिक्विडेशन कर दो, पहले आप ट्राई करो कि भाई वो बिजनेस कोई और चला सकता है क्या। ठीक है, अगर वो नहीं चला सकता तो फिर आप लिक्विडेशन करो, लेकिन बोथ दिस शुड बी रिसोर्टेड टू इन ऑल केसेस। ठीक है,
एक इन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है ना उसको थोड़ा सा दूर रखो, क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी में क्या होता है, डिले होता है। तो कमेटी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड ब्रिंगिंग इन आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। भाई कोई कोर्ट इसके बीच में नहीं आएगा, कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। बल्कि अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल भी रही है ना उसको भी रोक दो, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। Notable aspect was the recommendation of appointment of regulated private insolvency professionals। उन्होंने कहा भाई आप प्राइवेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को लाओ जो कि रेगुलेटेड हों, ठीक है, टू हैंडल दिस प्रोसेस। तो देर वॉज डेलिबरेट अटेम्प्ट टू कीप अवे द ऑफिशियल लिक्विडेशन फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, आप देखोगे कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है, जुडिशरी का भी इंटरवेंशन मिनिमम है। जो रूटीन प्रोसेसेस हैं, जो कमर्शियल डिसीजंस हैं, वो सारे के सारे कौन लुक आफ्टर करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या लिक्विडेटर। तो चाहे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो, चाहे लिक्विडेटर हो, चाहे बैंक्रप्सी ट्रस्टी हो, ये सारे के सारे जो हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होने जरूरी हैं, ठीक है। चलिए, distribution waterfall to the claimants as suggested by the committee kept the government dues at a priority below the unsecured financial creditors। अगर आप दूसरे एक्ट पढ़ो, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी है, उन सब में क्या बोला है, उन सब बोला भाई गवर्नमेंट के ड्यूज को पहले रिकवरी होगी। यहां पर बोला भाई गवर्नमेंट ड्यूज को बाद में दे दो। कंपनी ने अगर गवर्नमेंट के भी कुछ पैसे देने हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, है ना, वो सारे ड्यूज बाद में ले ले। पहले आप किसको दो, पहले आप जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको दो, या एम्प्लॉयज को दो, वर्कमैन को दो, ठीक है ना। गवर्नमेंट बाद में ले लेगी। अगर बिजनेस चलेगा, पहले तो कोशिश करो बिजनेस को चलाने की। अगर बिजनेस चलेगा तो गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा, क्योंकि टैक्सेस आएंगे, है ना। और नहीं भी चलेगा तो आप गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को वो कहते हैं हम अपना पहले हम पैसा बाद में ले लेंगे। पहले आप सबसे पहले तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसको दीजिए, एम्प्लॉयज हैं, वर्कमैन हैं, क्रेडिटर हैं, चाहे फाइनेंशियल हैं या आ, आपके ऑपरेशनल हैं, उसके बाद में फिर गवर्नमेंट ड्यूज आएंगे, ठीक है। एक फ्रेश स्टार्ट कॉन्सेप्ट भी है। फ्रेश स्टार्ट कॉन्सेप्ट है उनके लिए जिनकी इनकम या एसेट्स या लाइबिलिटीज बहुत कम है, ठीक है। पहले भी बहुत सारी कमिटीज बनी थी प्रायर टू दिस विश्वनाथन कमिटी, बट दोनों में फर्क क्या था कि विश्वनाथन कमिटी दे रीरोट दी होल कॉन्सेप्ट, दे रीरोट दी होल लॉ, ठीक है। तो इट हैड द मैंडेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स, ठीक है। पहले वालों में क्या करते थे, थोड़ा टिंकरिंग कर दिया इधर से उधर, थोड़ा वो चेंज कर दिया, बट इन्होंने पूरा रीराइट कर दिया होल लॉ। और ये जो लॉ है हमारा, ये बेस्ड है यूके लॉ पे। अब यूके लॉ क्या कहता है, यूके लॉ ये कहता है कि अगर बिजनेसमैन बिजनेस को नहीं चला पा रहा तो आप क्या करो, आप जो है उसको टेक ओवर कर लो। कौन टेक ओवर करेगा, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स में भी कौन, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। उनकी एक कमेटी बना दो और उस कमेटी को उसका इंचार्ज बना दो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को। तो वो पहले देखेगा, कोशिश करो रिवाइव करने की, नया एंटरप्रेन्योर ले आओ, और नहीं होता तो फिर स्पीडी लिक्विडेशन कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा फ्रेमवर्क समझ लेते हैं आईबीसी का। आईबीसी का फ्रेमवर्क क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और आईबीबीआई को रेगुलेटर बनाया, ठीक है। आईबीबीआई किनको रेगुलेट करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। नाउ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मे बी एन इंडिविजुअल, मे बी एन एंटिटी ऑल्सो। जैसे सपोज यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो यू मे प्रैक्टिस एज एन इंडिविजुअल और एज ए पार्टनरशिप फर्म। तो इसी तरह से यू मे बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिविजुअल कैपेसिटी आईपी, या फिर एक आईपीई बना करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या है, वो लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन पास करना है, 50 घंटे की ट्रेनिंग होगी, आपको एनरोलमेंट करना है विद आईपी और रजिस्ट्रेशन विद आईबीबीआई। तो अभी आजकल कंबाइंड फॉर्म आ गया है, तो दोनों का कंबाइंड फॉर्म एक ही अप्लाई हो जाता है। एंड यू कैन एज्यूम डिफरेंट रोल्स, आईआरपी, आरपी, लिक्विडेटर, बैंक्रप्सी ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फैसिलिटेटर वगैरह वगैरह। एजेंसीज कौन कौन सी हैं, आईपीए, तीन
हमारी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, जो हमारे जो तीनों इंस्टीट्यूट हैं, सीए इंस्टीट्यूट है, सीएमए है, और सीएस इंस्टीट्यूट है, इन तीनों ने अपनी अपनी एजेंसीज बना रखी है। आपको इन तीनों में से किसी के साथ भी एनरोल होना है। जैसे अगर आप एलएलबी करते हो तो आप क्या करते हो, आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, है ना। और अल्टीमेटली कॉलेज को कौन रेगुलेट करता है, कॉलेज को रेगुलेट करती है यूनिवर्सिटी। इसी तरह से यहां पर भी है कि आपको आईपीए रेगुलेट करेगी और आईबीबीआई भी रेगुलेट करेगा। आपको दोनों को रिस्पॉन्सिबल हो, दोनों ही आपको नोटिस भेज सकते हैं, दोनों ही आपका कंडक्ट रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं। एज ऑफ नाउ देयर इज ओनली वन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, एनईएसएल, जहां पर भी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस, जैसे डिफॉल्ट, डेट, ये सारी चीजें, चार्ज, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में एक अपना ये डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी डिफॉल्ट होता है, कोई नया लोन लेता है, कोई सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज है, सारे का सारा आपको एनईएसएल के पास रजिस्टर करवाना है। ठीक है। जैसे एमसी होता था पहले, अगर आपने कोई चार्ज क्रिएट करना है, सेटिस्फाई होगा चार्ज, तो सब चीजें कहाँ पर रजिस्टर होती थी, एमसीए में। या अगर सिक्योर्ड लोन है तो सरसई में। तो ऐसे ही यहाँ पर एनईएसएल है। अब एप्लीकेंट कौन हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऑपरेशनल क्रेडिटर हु हैज सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज, या फिर कॉर्पोरेट डेटा। ठीक है। और इसके लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो एनसीएलटी या डीआरटी है। एनसीएलटी है कॉर्पोरेट्स के लिए, और डीआरटी है इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए। और फिर इनकी अपीलेट अथॉरिटी है। अगर एनसीएलटी से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एनसीएलटी में अपील कर सकते हैं। डीआरटी के डिसीजन के अगेंस्ट में आप डीआरएटी में अपील कर सकते हैं। और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इंटरवेंशन मिनिमम है। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सेक्शन वाइज भी स्टडी कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप एक बार पूछ लीजिए, फिर हम सेक्शन वाइज स्टडी शुरू करते हैं। हाँ जी हितेश जी। मैंने नहीं आपको सर। एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि पढ़ाई करनी कैसे है क्या नहीं। और मैंने आपको सारा एक एक पीपीटी भी आराम से दिखा भी दी है। वेबसाइट का भी मैंने रेफरेंस दे दिया है कि वहां से आप एक्ट्स ले सकते हैं। कोई भी आपको इसके अलावा कोई स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है। आपको कोई बुक नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, क्योंकि बुक्स में भी गलतियां हैं। बुक्स अगर आप ले भी लोगे ना, उससे आपको नुकसान होने का ज्यादा है, फायदा होने का कम चांस है। तो कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको बिना बुक के समझ में नहीं आता, तो आप क्या है, बेयर कोड ले लीजिए बस। बेयर कोड के अलावा कोई बुक, जैसे मान लीजिए जैसे ये बेयर कोड है, तो ये बेयर कोड आप ले सकते हैं। इस बेयर कोड को लेकर के आप इस पे फिर अपने रेगुलेशन नंबर और रूल नंबर मार्क करने पड़ेंगे आपको, वो पीपीटी से देख के, है ना। वैसे कोई जरूरत है नहीं। उसके बजाय तो आप ये पीपीटी है इसका ही प्रिंट निकलवा लेना, वो ज्यादा बेटर है। इसका भी तो आप प्रिंट निकलवा सकते हो। जो भी आपके पास में कोई कॉलेज होगा, कॉलेजेस वगैरह के पास बहुत सारे प्रोफेशनल जो होते हैं वो होते हैं फोटोस्टेट वाले। वो अच्छी तरह से प्रिंट आउट इनका निकाल देगा, देख लेगा। कई बार होता है ना, कोई पीपीटी में कोई बड़ा आ रहा है, कोई छोटा आ रहा है, इस तरह से। तो अगर आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, वो बैक टू बैक भी आप निकलवा सकते हो, है ना। ताकि नंबर ऑफ पेजेस, या आपको लगे भाई जिसका जरूरत है उतने का निकलवाओ। मटेरियल तो बहुत सारा है हमारे पास, है कि नहीं। तो उसमें भी सारे का जरूरत नहीं है, जैसे आपको जरूरत हो उस उतने का आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी बुक की जरूरत है। कुछ भी बुक की जरूरत आपको नहीं है। बेयर कोड भी सारे आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और जो मटेरियल है वो भी हम आपको सॉफ्ट कॉपी में दे देंगे। ये सारी सॉफ्ट कॉपी एडिटेबल है, आप अब उसके ऊपर अपनी मार्किंग कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी में भी। और प्रिंट आउट लेके तो आप कर ही सकते हो, है कि नहीं। जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू अगर आप बुक भी ले लोगे ना, बुक में क्या है कि स्टैंडर्ड उतना नहीं है जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है। प्रॉब्लम वहां पर आएगी आप। उसके बजाय तो हमने जैसे आपको टेस्ट दे रखे हैं, वो टेस्ट आप ऑनलाइन टेस्ट कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। भाई 3 3.5 4 हजार क्वेश्चन है उसमें, बहुत क्वेश्चन होते हैं। आईबीबीआई का अपना क्वेश्चन बैंक जो 10,000 का है, 10,000 का क्वेश्चन बैंक है उनका। उसी में से आते रहते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए कोई बुक वुक लेने की मेरे हिसाब से तो जरूरत है नहीं। अगर आपको
प्रिंटेड में ही पढ़ना है तो आप इसी का प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसी से पढ़ लेना। चलिए जी, अब बेयर कोड से शुरू करते हैं एक बार। ठीक है जी। अब ये जो बेयर कोड वाली पीपीटी मेरे ख्याल आपके स्क्रीन पर विजिबल है ना, तो इसमें 1136 स्लाइड्स है। इसमें क्या है, पूरा बेयर कोड है, रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस है। अब इसका पहले कि हम ये शुरू करें, मैं ना आपको प्रोसेसेस थोड़े से बता देता हूं। प्रोसेसेस भी इसमें भी होंगे बेहतर। जस्ट अ मिनट। ये मैं स्क्रीन शेयरिंग में, जस्ट अ मिनट, ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं यहाँ आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए ऐसा है कि हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई क्या होगा, दो ही चीजें होगी, या तो रेजोल्यूशन होगा या लिक्विडेशन होगा, ठीक है। अब रेजोल्यूशन किसका हो सकता है, कॉरपोरेट्स का हो सकता है या नॉन कॉरपोरेट्स का हो सकता है, ठीक है। अब कॉरपोरेट्स कितने तरह के हो सकते हैं, कॉरपोरेट में हो सकता है जैसे इसको रेजोल्यूशन, ये कॉरपोरेट्स, ठीक है। अब कॉरपोरेट जो है हो सकता है वो एमएसएमई हो, ठीक है। एमएसएमई का कॉरपोरेट का तरीका अलग है। हो सकता है वो स्मॉल कंपनी हो, उसके लिए अलग तरीका है, फास्ट ट्रैक, ठीक है। या फिर वो नॉर्मल कंपनी हो सकती है। तो इन्होंने तीन प्रोसेसेस दे दिए रेजोल्यूशन के। एमएसएमई का सेपरेट प्रोसेस है, फास्ट ट्रैक का सेपरेट प्रोसेस है, और नॉर्मल कंपनीज का सेपरेट प्रोसेस, ठीक है। अब इसके अलावा इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स मतलब इसमें दोनों ही आ गए, आपके इंडिविजुअल्स भी आ गए और पार्टनरशिप फॉर्म्स भी आ गए। तो इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स मतलब जितनी भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं। अब इनके कौन कौन से तरीके हो गए, इसमें एक तो हो गया आपका फ्रेश स्टार्ट। ये फ्रेश स्टार्ट क्या है, मतलब जो बिल्कुल ही भूखा नंगा है, उसके पास कुछ नहीं है, तो उसके लिए फ्रेश स्टार्ट है। उसके पास इनकम लिमिटेड है, एसेट्स लिमिटेड है, लाइबिलिटीज लिमिटेड है, ठीक है। एसेट्स 20,000, इनकम 60,000 पर एनम, और लाइबिलिटीज 35,000। तो ही कैन अवेल फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट में मतलब उसको कुछ नहीं देना, जाओ मौज करो, ठीक है। या फिर इंसॉल्वेंसी, ठीक है। ये दो मेथड। अच्छा, उसके अलावा अगर रेजोल्यूशन नहीं होता तो क्या होगा, फिर लिक्विडेशन होगा। लिक्विडेशन में भी आपके पास पहला कॉरपोरेट्स का। अब कॉरपोरेट्स के लिक्विडेशन में एक तो वॉलेंट्री लिक्विडेशन है, अपने आप अगर कर सकते हो आप। उस केस में क्या है कि डेट फ्री होना चाहिए, डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए, या डेट फ्री कॉरपोरेट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है लिक्विडेशन, मतलब कंपल्सरी लिक्विडेशन उसको कह सकते हो, या आप लिक्विडेशन कह सकते हो, ठीक है। और हमारा हो गया इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स में क्या होगा हमारा, ये जो इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स है,
इनके क्या होगा, इनका लिक्विडेशन तो होगा नहीं, इनकी होगी बैंक्रप्सी। ठीक है। तो अब हमारे को जो केस स्टडीज आनी है, जैसे सीआईआरपी और लिक्विडेशन में 40 मार्क्स की केस स्टडी आनी है। अब सीआईआरपी में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, एमएसएमई अलग है, उसके लिए प्री पैक प्रोसेस है। ठीक है। फास्ट ट्रैक अलग है और नॉर्मल सीआईआरपी अलग है। तो इसमें से किसी भी प्रोसेस के ऊपर वो केस स्टडी पूछ सकता है आपसे। ठीक है। इसी तरह से इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स में वो फ्रेश स्टार्ट के ऊपर भी केस स्टडी बना सकता है, इंसॉल्वेंसी के ऊपर भी बना सकता है, बैंक्रप्सी के ऊपर भी बना सकता है। लिक्विडेशन में वो वॉलंटरी लिक्विडेशन या लिक्विडेशन के ऊपर केस स्टडी बना सकता है। ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस। अब ये प्रोसेसेस को हमें अलग अलग तरह से समझना है कि कौन से प्रोसेसेस क्या हैं। हर एक के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग रेगुलेशंस हैं। जैसे प्री पैक है, अगर हम प्री पैक पढ़ेंगे तो प्री पैक में कुछ सेक्शंस भी हैं, कुछ रेगुलेशंस भी हैं। इसी तरह से फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक में भी कुछ सेक्शंस हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है कि इन चीजों को हम लोग याद कैसे रखेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, उसके लिए हमने वन लाइनर्स बना दिए। ठीक है। कि एक सेक्शन के लिए अगर हमारे पास एक लाइन आ जाए और वो एडिटेबल हो जाए, है ना, आप उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकें, आप उसमें जो चीज नई जोड़ना चाहें वो जोड़ दें। क्योंकि एग्जाम से पहले इतने सारे, अगर 255 सेक्शंस हैं तो 255 सेक्शंस हैं। जैसे मैंने जितने प्रोसेसेस बताए, इनके अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, तो वो सारे भी याद करने हैं आपको। तो अब क्या है कि आपको सेक्शन वाइज वन लाइनर्स। ठीक है। ये सेक्शन वाइज वन लाइनर्स, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सेक्शन वाइज वन लाइनर्स बना रखे हमने। अब देखो डेफिनेशंस में तो बन नहीं सकते सेक्शंस, है ना, लेकिन जो दूसरे सेक्शन है उनमें, जैसे अब ये देखिए, मेरी पीपीटी नजर आ रही होगी आपको, है ना। अब ये देखिए, नजर आ रही ना देसाई जी। हाँ जी सर। तो जैसे सेक्शन 6 है, अब सेक्शन 6 को हमने एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। आप इसके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, है ना। ये जितने भी सेक्शंस हैं हमने सारे को एक एक लाइन में लिख दिया। अब जैसे 54A to 54P, इसको याद कैसे करना है, ABCDEFGHP, तो इसको याद कैसे करना है, वो याद करने का तरीका भी हमने बता दिया इसमें। ठीक है। ये सारे जितने भी सेक्शन है देखिए, हमने वन लाइन में एक्सप्लेन कर दिया सबको। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अब ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ठीक है जी। अब प्रोसेसेस में आप कहोगे जी ऐसा है, हमें अगर चार्ट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है ना। नेचुरली अगर हमें चार्ट मिल जाए इन प्रोसेसेस को समझने का तो बहुत ही अच्छा है ना। तो वो चार्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अब ये हमारा रामचरितमानस है, पूरा ग्रंथ है, इसको हम शुरू करते हैं टॉपिक वाइज। मैंने इसमें इंडेक्स भी बना दिया है, तो इंडेक्स से जिस पे भी आप जाना चाहो उस पे आप जा सकते हो। ठीक है। ये पूरा का पूरा बेयर कोड है। ठीक है। बेयर कोड में क्या खासियत है, 21 के बाद कोई अमेंडमेंट हुई नहीं। जो भी अमेंडमेंट हुई रेगुलेशंस में हुई, रूल्स में भी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, रेगुलेशंस में ही अमेंडमेंट है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रियम्बल। क्या कहता है प्रियम्बल? प्रियम्बल ये कहता है कि दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड amend द लॉज relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms, and individuals in a time-bound manner for maximization of value of assets of such persons, to promote entrepreneurship, availability of credit, and balance the interest of all the stakeholders
including alteration in the order of priority of payment of government dues, and to establish an insolvency and bankruptcy board of India and for matters connected therewith or incidental thereto. तो ये हमारा प्रियम्बल है कि ये बनाया क्यों गया, ये एक्ट क्यों बनाया गया. Part 1 is preliminary. Section 1 says short title, extent and commencement. So this code may be called the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. It extends to the whole of India. अभी आपको बीच में स्टार मार्क नजर आ रहा होगा. ये स्टार क्यों है? क्योंकि पहले पार्ट 3 जो था, जो इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म का है, दैट वाज नॉट एप्लीकेबल टू J&K. ये नीचे लिखा हुआ देखो, है ना. लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, तो उसके बाद जो है ये वाला चीज खत्म हो गया. अब जो आईबीसी है, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. इट शैल कम इनटू फोर्स on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, provided that different dates may be appointed for different provisions of this code, and any reference in such provision to the commencement of this code shall be construed as reference to the commencement of that provision. वो कहता है कि इसके जो प्रोविजंस हैं वो डिफरेंट डेट्स पर नोटिफाई हो सकते हैं. ठीक है. आज की डेट में भी पूरा कोड नोटिफाई नहीं हुआ है. अगर आप फ्रेश स्टार्ट के लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है. अगर कोई फ्रेश स्टार्ट की एप्लीकेशन आज की डेट में लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता. ऐसे ही इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी और इंडिविजुअल बैंक्रप्सी के लिए भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए आए हैं? पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए. ठीक है. तो आज की डेट में भी पूरे का पूरा कोड नोटिफाई नहीं हुआ है. सेक्शन 2 क्या बोलता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस कोड शैल अप्लाई टू एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे 56 था या उससे पहले वाले थे. एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स except insofar as the said provisions are inconsistent with the provisions of such special. बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो स्पेशल एक्ट में बनती हैं, जैसे LIC है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है. इनके अलग अलग एक्ट है, उस एक्ट में ये कंपनी बनी हुई है. ठीक है. तो अगर कोई कंपनी है विच इज गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, तो उस केस में क्या होगा, और अगर उसमें भी कुछ इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस है तो वो वाले प्रोविजन उसमें लगेंगे, है ना. अदरवाइज यहां के प्रोविजन लगेंगे. एनी LLP, उसके बाद सच अदर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई. उसके लिए गवर्नमेंट अपना एक नोटिफिकेशन लाएगी. कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ है उसके लिए. ठीक है. अभी किस पर एप्लीकेबल हो गया? कंपनीज पर, LLP पर, और जो हमारी स्पेशल कंपनीज है. ठीक है. कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट. उसके अलावा अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट पे लगाना है तो वो क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाएगा उसके लिए. पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल्स अदर देन पर्संस रेफर टू इन क्लॉज ई. अब देखो, इंडिविजुअल्स को इन्होंने अलग कर दिया और जो पर्सनल गारंटर है उनको अलग कर दिया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी इंडिविजुअल्स के इंसॉल्वेंसी रिलेटेड प्रोविजंस नोटिफाई नहीं हुए हैं. ठीक है. सिर्फ पर्सनल गारंटर्स के जो प्रोविजंस है वो नोटिफाई हुए हैं. जैसे मान लीजिए कंपनी ने लोन लिया और एक इंडिविजुअल ने उसकी गारंटी दी, तो वो अगर कंपनी लोन नहीं दे पा रही तो उस इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी शुरू हो सकती है आईबीसी में. लेकिन अगर एक इंडिविजुअल ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन लिया तो क्या आईबीसी में एप्लीकेशन लग सकती है? द आंसर इज नो, क्योंकि कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, है ना. उसके लिए आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव मोड्स में जाना है. आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, DRT में जाओ, इस तरह से. ठीक है. In relation to their insolvency, liquidation, voluntary liquidation or bankruptcy as the case may be. ठीक है. डेफिनेशन बहुत सारे डेफिनेशंस हैं. बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड का यहां पर मतलब है IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. जैसे अगर हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं तो वहां बोर्ड का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. यहां पर जब भी बोर्ड लिखा है
तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी लिखना होगा ना, तो वो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखेगा। बोर्ड का मतलब कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होगा यहाँ पर। बोर्ड का मतलब हमेशा होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। बेंच मीन्स ए बेंच ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसकी एक से ज्यादा बेंचेस हो सकती हैं, है ना। जैसे एनसीएलटी है, एनसीएलटी दिल्ली है, एनसीएलटी दिल्ली में अलग अलग बेंचेस हैं, प्रिंसिपल बेंच है, इस तरह से। बायलॉज मीन्स द बायलॉज मेड बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। अब जैसे हमने देखा कि रेगुलेटरी एजेंसीज कौन है, दो हैं। कौन कौन सी? एक तो आईपीए हो गया और एक आईबीबीआई हो गया। तो आईपीए क्या बनाती है? अपने बनाती है बायलॉज। ठीक है। और आईबीबीआई क्या बनाती है? वो बनाती है रेगुलेशंस। ठीक है। उन्होंने डिस्टिंक्शन तो करना ही था ना। तो आईपीए क्या बना रही है? वो बायलॉज बना रही है। और आईबीबीआई क्या बना रही है? वो बना रही है रेगुलेशंस। चार्ज क्या है? चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ एनी पर्सन और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स और बोथ एज द केस में बी एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स ए मॉर्टगेज। चार्ज आपको मालूम ही है। चेयरपर्सन मीन्स चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। उसके अलावा यहां पर दो तीन डेफिनेशन आती है इंपॉर्टेंट। एक तो आती है क्लेम। ठीक है। एक आती है डेट। एक आती है डिफॉल्ट। अब क्लेम और डेट में क्या फर्क है? क्लेम तो ये है कि भाई आपने पैसे लेने हैं। ठीक है। आपका क्या है? या तो राइट टू पेमेंट है, वेदर और नॉट सच राइट इज रिड्यूस टू जजमेंट, फिक्स, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, लीगल, इक्विटेबल, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। या राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इफ सच ब्रीच गिव्स राइट टू पेमेंट, whether or not such right is reduced to judgment, fixed, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured और unsecured। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है। आपने कंपनी का काम कर रहे हैं। अभी उस काम की बिलिंग हुई नहीं है, क्योंकि बिलिंग तो रोज होती नहीं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, है ना। मेजरमेंट होता है, उसके बाद बिलिंग होती है। तो जो अमाउंट अभी बिलिंग हुआ नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? वो क्लेम है आपका, क्योंकि आपको राइट टू पेमेंट है। आपने काम कर दिया। ठीक है ना। अगर बीच में काम रुक जाए मान लो, तो क्या होगा? आप पैसा तो क्लेम कर सकते हैं ना। तो क्लेम वो आ जाएगा आपका क्लेम में। इसी तरह से अगर आपको राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज यू हैव एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए क्लाइंट विच इज एक्सिक्यूटिंग ए प्रोजेक्ट। ठीक है। अब उसमें टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि भाई द क्लाइंट विल सप्लाई यू फ्री स्टील एंड सीमेंट, और आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है। और अगर आपको फ्री स्टील या सीमेंट नहीं देता, तो अगर डिले होता है, तो आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो वो क्या हो गया आपका? राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों तरह के जो क्लेम्स है वो आपके क्लेम्स में आ जाते हैं। ठीक है। कॉर्पोरेट पर्सन कौन है? वो कंपनी है और एलएलपी है। बट शेल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। क्या मतलब? ये जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपका कॉर्पोरेट पर्सन में नहीं आता, क्योंकि हमने पढ़ा कि भाई पार्ट टू जो है वो कॉर्पोरेट पर्सन से रिलेटेड है ना। पार्ट थ्री इंडिविजुअल्स पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है। इन्होंने कहा कॉर्पोरेट पर्सन में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं आएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप बैंक का पैसा नहीं देते, यू आर ए कंपनी, आपने बैंक का पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो बैंक आपके अगेंस्ट में एक्शन फाइल कर सकता है, आईबीसी में एप्लीकेशन लगा सकता है। लेकिन अगर मान लो आपने बैंक को कुछ सप्लाई किया और बैंक आपका पैसा नहीं दे रहा, तो क्या आप आईबीसी में जा सकते हो? आईबीसी में जा सकते हो, लेकिन पार्ट टू का जो प्रोविजन है वो अलग है। आप कॉर्पोरेट पर्सन में वो नहीं है, उसके लिए सेपरेट रूट अवेलेबल है। जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, उसके लिए इन्होंने सेक्शन 227 बना रखा है। वो सेक्शन 227 कौन से पार्ट में आता है? वो लास्ट पार्ट में आता है आपका, पार्ट 5। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई अगर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ने कोई गड़बड़ की है,
तो उसके लिए क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, क्यों ये जितने भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से गवर्न होते हैं, जैसे आरबीआई है, ठीक है, कोई भी एनबीएफसी है, मान लो दीवान हाउसिंग फाइनेंस है, ठीक है, मुथूट फाइनेंस है, कोई भी है, मान लो इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है, तो क्या आम आदमी एक्शन ले सकता है? आंसर इज नो। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन इशू करेगी कि भाई जो भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं अबाउट दिस अमाउंट, सो दे मे बी ब्रॉट अंडर आईबीसी, और उसके लिए वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर की कॉन्सेप्ट है, विच इज समथिंग सिमिलर टू दिस सीआईआरपी, बट प्रोविजन थोड़े से डिफरेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अगर ऐसे बैंकों के अगेंस्ट में आईबीसी होने लग गया फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि इट में शेक द पब्लिक कॉन्फिडेंस, तो इसीलिए इनके प्रोविजंस को हमने अलग रखा। कॉर्पोरेट डेटर कौन है? तो कॉर्पोरेट डेटर मीन्स कॉर्पोरेट, एक मिनट, कॉर्पोरेट डेटर मीन्स कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज डेट टू एनी पर्सन। अब देखो एक डेटर है और एक है क्रेडिटर। तो डेटर कौन है? जिसने पैसे देने हैं। क्रेडिटर कौन है? जिसने पैसे लेने हैं। कोर सर्विसेज मीन्स सर्विसेज रेंडर्ड बाय इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। हमने पढ़ लिया कि एक ही इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है एज ऑन डेट, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। सो कोर सर्विसेज मीन्स सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन in such form and manner as may be specified, safe and accurate recording of financial information, authenticating and verifying the financial information submitted by a person, and providing access to information stored with the information utility to persons as may be specified, ठीक है। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर मीन्स एनी पर्सन टू whom a debt is owed and includes a financial creditor, operational creditor, secured creditor, unsecured creditor and a degree holder। तो ये क्रेडिटर में आ जाएंगे। डेट क्या है? डेट मीन्स ए लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम विच इज ड्यू। तो जो क्लेम अभी ड्यू नहीं है वो डेट नहीं बनता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आप एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूट कर रहे हैं, अभी बिलिंग नहीं हुई तो वो क्लेम है, डेट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिलिंग कर दी, वो ड्यू भी हो गया, तो वो क्या बन गया? डेट। तो डेट मीन्स ए लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम विच इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन एंड इंक्लूड्स ए फाइनेंशियल डेट एंड ऑपरेशनल डेट, ठीक है। डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट मींस नॉन पेमेंट ऑफ डेट व्हेन होल और एनी पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट हैज बिकम ड्यू एंड पेबल एंड इज नॉट पेड बाय द डेटर और द कॉर्पोरेट डेटर ऑफ द केस में भी। तो ये डिफॉल्ट है, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू ए पर्सन मींस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या है? रिकॉर्ड ऑफ डेट, रिकॉर्ड ऑफ लाइबिलिटीज, रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स, record of instances of default, record of balance sheet, such other information as may be specified। उसके बाद में रेगुलेशन 23 है ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशंस, वो भी इसके साथ पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? शेड्यूल्ड बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 45I, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सच अदर इंस्टीट्यूशंस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारी डेफिनेशंस। तो बाकी का आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसकी ना रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दूंगा, जो हमारी फर्स्ट सेक्शंस वाली रिकॉर्डिंग है उसको भी मैं शेयर कर दूंगा। और फिर नेक्स्ट क्लास हम एक दिन छोड़ करके एक दिन क्लास करा करेंगे। उससे क्या होगा कि आप पढ़ाई भी कर लोगे साथ में, है ना। वरना क्या होता है कि सिलेबस इतना वास्ट है ना, आप शुरू शुरू में ऐसे करेंगे, बाद में अगर आपको लगेगा तो हम कंटिन्यूअस भी क्लास कर सकते हैं, है ना। अभी क्या है, एक एक दिन का गैप दे करके करेंगे, उससे क्या है ताकि आपको समझ में भी आ जाए। एंड बी एक्टिव इन द ग्रुप ऑल्सो, ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं भी आंसर दे दूंगा ग्रुप में थ्रू ऑडियो नोट, या जैसे भी आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। अगर कोई चीज पर्टिकुलर बात है नहीं समझ में आ रही तो भी अगर आप कर सकते, आपको लगे कि ग्रुप में पूछना ठीक नहीं लग रहा, आप इंडिविजुअली भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, है कि नहीं। मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद यू। मेरा पर्पज यही है कि भाई आप सब लोग पास हो जल्दी से जल्दी। Okay, Ji. Good night. And I will share this recording also in the group.